Hello and welcome to the second episode of India Development Review's four-part series on the recently passed Farm Acts, in which we speak to various stakeholders to understand the impact of these acts. I'm Harsha Parekh, and joining us today is Puneet Singh Thind, who is the president of Northern Farmers Mega Farmer Producer Organization based in Sirkapur near Chandigarh. Puneet, it's great to have you with us today, and we look forward to learning about the new agricultural laws from you. To get started, tell us how you see these legislations impacting the farmers and FPOs. See, there will be some immediate effect and there will be some long-term effect on the working of farmers and our crop pattern. A lot is going to change, that is for sure. Uh, One impact actually that we can say is on FPOs, because FPO, they are working like an aggregator. So it is right that they will get a freedom to move their produce, logistics freedom. They can sell anywhere in the market. That is a positive sign for FPO to work on commodities like vegetable, fruit, dairy, and other products. But these reforms, they will also have an impact on traditional conventional crop like wheat and paddy, which we generally tend to sell in mandis, in APMCs. And we need to understand that nature of both the crop and the demand from the market is totally different. It is the government which is the largest buyer for these commodities. So farmers, they have apprehension on one side, and someone like us who is running an FPO, we are looking these reform in a different way to support our activities. So, but we believe no reform should come at the cost of MSP. With this deregulation of the market, due to these reforms, do you think there'll be more customer and investor interest because they might see it as opening up of markets? I mean, how do you think that side of the business will respond? See, I would explain this question in a two-way. On a fresh crop and on cash crop, we can say cash crop are like vegetables, basmati, milk, and these commodities, where retail customer and buyers, institutional buyer, and those are available. I think so. We will get a large number of buyer now coming directly to the farm to buy these commodities. See, we grow coarse cereal rice, which we don't consume here in North India, particularly in Punjab. It goes for public distribution. But with these ordinance, one impact will be that our market and our produce will be directly linked to the global market. And we know in a state like Andhra and south of India, they prefer to buy wheat from Australia than buying from Punjab because of local logistics and issues. So one fear is that if in this price regime, our markets is going to be linked with the global market, nothing will be in our control. Deregulations are better for the commodities like fresh produce, where a local market is available, local buyer is available. Right. So, do you see anything positive in these acts for FPOs? एफपीओ के ये पॉजिटिव है जो एफपीओ ऑलरेडी कैश क्रॉप में काम करती हैं। वेयर एफपीओ जो डिपेंडेंट ही नहीं है एमएसपी के ऊपर, जिनका एमएसपी की खरीद ही नहीं होती, तो वहां पे टाइम विल टेल की वो उसको कैसे हम रिजल्ट कैसे देखते हैं। बट फ्रीडम जो मिली है, जहाँ कहीं भी सेल कर सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे हम सिट्रस क्रॉप यहाँ से कर्नाटका वगैरह भेजते हैं, बाहर की स्टेट में जाते हैं, महाराष्ट्र का प्रोड्यूस है जो पंजाब में बाकी स्टेट में आके बिकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी। फ्रीडम का पहला देखने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि विच कमोडिटी वी आर टॉकिंग। अगर तो सरकार को चीज खरीद रही है फिर तो फ्रीडम की जरूरत नहीं है, वहां पे तो सरकार खरीदती रहे, वो ही हमारा एडवांटेज है। फार्मर डोंट नीड फ्रीडम फॉर द कमोडिटी विच गवर्नमेंट बाइज। और जो गवर्नमेंट से बाहर की जहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं, फार्मर मार्केट के हिसाब से प्रोडक्शन को ले रहे हैं, मार्केट के हिसाब से वो बेचते हैं, प्राइवेट ट्रेडर के साथ डील करते हैं, इट मेक सेंस इन दैट केस की ठीक है, अब आपके पास एक फ्रीडम हो गई, आप किसी भी मंडी में जा सकते हो, फार्मर आपके जो परचेजर है वो आपके साथ सीधा फार्म में आ सकता है। लेकिन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट से कोई फ्रीडम थोड़ी चाहिए, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ बने रहे, लेकिन गवर्नमेंट 100% प्रोक्योरमेंट करे। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या
वहाँ पे जो शरबती है या एमपी की वीट है, इट इज वेल टेकन इन ऑल अक्रॉस द कंट्री। लोग शरबती की वीट को हाई वैल्यू पे बेचते हैं, वो हाई वैल्यू एक ऑलरेडी उसकी ब्रांडिंग और एक कस्टमर बेस बना हुआ है। बट सेम इज नॉट ट्रू फॉर द वीट विच वी आर प्रोड्यूसिंग इन पंजाब। तो उसको काम करने के लिए वो जो होमवर्क करने के लिए मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए फार्मर को। एक झटके से ऐसे अगर उनको स्विच करेंगे वो रिस्की हो सकता है। दिस इज द एप्रीहेंशन, ये लोगों के दिमाग में जो डर है ना वो यही है। You see, there are some people who are saying that this is good. They are saying that maybe the farmers in Punjab and Haryana should not grow so much wheat, since so much of it is lying around in the FCI godowns and not even used. They are saying that this will probably push the farmers to grow more cash crops and other crops and to have more market demand. Is that a valid argument? There is an ecosystem, जिस इकोसिस्टम को तैयार करते हुए इतने साल लगे हैं। अब उस इकोसिस्टम को अगर हम ये कहें कि आप इसकी बजाय ये दूसरी क्रॉप ग्रो करो, फार्मर बड़ा इंटेलिजेंट है, फार्मर को पता है कि मैं वही चीज ग्रो करूंगा जिस चीज की एक सस्टेनेबल डिमांड भी है, सस्टेनेबली उसको मैं प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एनी चेंज हैज टू बी ग्रेजुअल। हमारे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर 1-2 डिग्री पे भी आता है और 46 पे भी जाता है। यहाँ पे विंटर समर है। हमारी जो सिचुएशन है ना, हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है, बट वी आर सुटेबल टू ग्रो। तो जब हम वो क्रॉप, हमारा एक सेट पैटर्न है, एक श्योर शॉर्ट क्रॉप जो फार्मर यहाँ ले रहे हैं, उसको स्विच करने के लिए एक बहुत बड़े बेनिफिट की जरूरत पड़ेगी कि दूसरी क्रॉप के लिए बड़े बेनिफिट दिए जाए और फार्मर को रिटर्न दिखाई जाए कि इफ यू स्टॉप ग्रोइंग व्हीट एंड राइस क्रॉप सर्कल जो सस्टेनेबल या इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, तो आप इस क्रॉप की बदले अगर कोई दूसरी क्रॉप लेते हो तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट है। ओवर द ईयर्स वो बेनिफिट दिखाए जाएंगे, देन फार्मर विल बी इन ए पोजीशन टू मेक ए कंपैरिजन। आज तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। टुडे farmer is better off, farmer believe they are better off if they are growing just wheat and rice and they supply it to the government. That's the only calculation they understand. और सरकार पर अभी तक उनको वर्बली बताया जरूर गया है, बट ये उनको अश्योरेंस नहीं अभी तक मिल पाई फार्मर्स को कि उनकी जो व्हीट और पैडी की जो प्रोक्योरमेंट है, इट विल कंटिन्यू इन द लॉन्ग रन। वो आज तो उनको लग रहा है कि हमें मिलेगी, बट वो उनको डर ये सता रहा है कि हो सकता है कि और 2-4 साल बाद जाके इसको ये डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। So, you've explained the apprehensions that farmers have about these new laws. But what is it that farmers, particularly from Punjab and Haryana, want? What is their demand? एक तो हमारे पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि देयर विल बी सम बायर। अब इन केस ऑफ प्राइवेट, वो पोटैटो जैसी या टमाटो जैसी चीज है, वो कभी 6 रुपए भी बिकती है और कभी वो 60 रुपए पे भी बिकती है। तो वो चाहते हैं कि हम इतना बड़ा वो जो वेरिएशन है प्राइस में, उससे डरते हैं। उसकी जगह हमें एक श्योर क्रॉप मिल जाए, हमारी जो मिनिमम गारंटी, मिनिमम इनकम की और मिनिमम प्राइस की एक गारंटी हो ना। वो गारंटी कहाँ से आएगी? वो गारंटी आती है कुछ एमएसपी जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है, एंड अराउंड दे वांट की इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो भी इंश्योर हो। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम होना एक चीज है, एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट होना दूसरी बात है। क्या असल में कोई बायर आएगा भी या उसको प्रोक्योर करेगा? एंड इफ प्राइवेट बायर इज नॉट कमिंग, गवर्नमेंट विल बाय इट और नॉट। गवर्नमेंट का डर लोगों को ज्यादा सता रहा है कि कहीं गवर्नमेंट पीछे से खिसक ना जाए। अगर जो प्राइवेट हाउसेज है, बिजनेस हाउसेज है, अगर वो एक हफ्ता भी लेट करते हैं बाइंग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नॉट बाइंग, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ कि अगर वो एक हफ्ता डिले भी करते हैं तो उसका जो हमारी ये कमोडिटी, ये जो प्राइसेस है, इनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो काम गवर्नमेंट कर सकती है, इन नर्शल मैं ये कहना चाहूंगा कि इरेस्पेक्टिव की इन्वेस्टमेंट की हमें बाकी जगह पे जरूरत है। जो काम सरकार कर सकती है वो प्राइवेट सेक्टर कुछ सर्टेन कमोडिटीज में वो काम नहीं कर सकता। Like you said, in the absence of MSP, farmers will have to bear the brunt of price fluctuations, whether they sell it for ₹6 or 60. Is there a way to reduce that risk? FPO are trying to address this problem in a different way. देखिए FPO में अभी जो, because
मूवमेंट जो एफपीओ की शुरू हुई है, इट इज नॉट वेरी ओल्ड. तो एफपीओ में जो हमारा वॉल्यूम है, इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली. अभी हम ये नहीं कह सकते कि एफपीओ आर इन ए पोजीशन टू डेंट द मार्केट. सप्लाई चेन के अपने इशू है, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है. FPOs are trying to become an aggregator so that they can negotiate in a better way. कई बार ये होता है जो मिडिल मैन है उनके साथ डील करने के लिए इंडिविजुअल फार्मर इज नॉट इन ए पोजीशन टू नेगोशिएट, बट एन एफपीओ कैन बेटर नेगोशिएट. ऐसा नहीं है कि एफपीओ में जो फार्मर है वो अलग है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर वो अलग है. दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एमएसपी को लेकर भी सेम है और जो उनके अदर क्रॉप के जो चैलेंजेस है वो भी समझते हैं. तो इस प्रॉब्लम को हम कलेक्टिवली एड्रेस करना चाहते हैं ताकि सभी की जो बात है वो सुनी जाए. We don't want to get divided on the basis of FPO and non-FPO members. It's a problem for everyone and concerns are very similar of all the farmers. On that note, Puneet, we'd like to thank you for joining us and sharing your insights on the impact of the farm laws with us. It was wonderful talking to you. Thank you. Okay, thank you.